I hope you have seen the last video of our science class and आपको सब समझ में भी आया होगा I hope, and we have almost completed our fifth chapter, which is fundamental unit of life, and that is why it is very important to watch the all videos if the students have not seen or missed, because there were certain holidays, तो शायद आपने मिस किया हो, तो सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. चैप्टर 5th साइंस वी आर स्टडीइंग. वी have started to understand cell organelles. Cell organelles, which are the units of cell, performs specific functions, and these specific functions are performed by cell organelles separately. For example, in the last class we have understood the concept of endoplasmic reticulum, and endoplasmic reticulum is the organelle which is very important for the production of proteins and lipids, and these proteins and lipids are helpful in the formation of cell membrane. We also understood that process is called membrane biogenesis, and we also understood that the hormones and enzymes produced in each and every part of our body is due to endoplasmic reticulum. That was the first organelle which we understood, and it was important to understand all these organelles. Let's understand another important organelles, and that is Golgi apparatus. Golgi apparatus. Now, what is the meaning of apparatus? I'll come back later on Golgi, but apparatus का मतलब क्या होता है? Apparatus मतलब एक यूनिट जिसके अंदर छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं. apparatus इसको कहते हैं. एक मशीनरी apparatus को उसको भी बोल सकते हैं. Golgi apparatus is the organelle which is coined by or observed by one wonderful personality called Camillo Golgi. He was a scientist and he played a crucial role in the identification of the structure of nervous cell and our nervous system. He also received Nobel Prize for the same. He studied the nervous system in a different way, and he observed many things related to nervous system. We will not discuss this later. Discuss this because it is not our concern to understand about nervous system. We are understanding Golgi apparatus, and it was observed by Camillo Golgi. Let's understand how Golgi apparatus is organized or present in the cell. First, it is membrane bound vesicle, or we can say it's the membrane bound organelle, arranged approximately parallel with each other in stacks. किस तरह से अरेंज होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा. एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होते, लेकिन उसके जो पार्ट होते हैं ना, वो इस तरह से एक दूसरे से अरेंज होते हैं. आप देख सकते हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा मिलता जुलता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का था. वो ब्रिज बना देते एक दूसरे के साथ. इसमें ऐसा ब्रिजिंग जैसा नहीं होता.
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लेकिन ये जो है गोल्गी apparatus वो इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल, ठीक है। और ये जो पैरेलल अरेंजमेंट जो उनकी है, दिस पैरेलल अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स, कॉल्ड सिस्टर्न्स। Now this Golgi apparatus is attached with endoplasmic reticulum, इसलिए कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम देखने को मिलता है जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है। Now why it is attached? Why it is attached with endoplasmic reticulum? Let us understand that. Why it is attached? First we discussed about this Golgi apparatus का किसने ढूंढा और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग समझेंगे Golgi apparatus के दूसरे फीचर्स भी समझेंगे और उसके फंक्शंस भी समझेंगे। Material produced by endoplasmic reticulum is packaged and transported via Golgi apparatus to the target site inside or outside cell. Now to understand this, let's create a practical scenario. This is an envelope, okay? I have written a letter in it, okay? Or it is a document which I wanted to transport somewhere. First of all, what I have to do, I have to write a letter. एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिख दिया, उसका पैकेजिंग कर दिया, सेलो टेप लगा दिया, as you can see this एनवेलप फॉर्म कर दिया। बनाया किसने? मैंने। कागज की जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, कागज पेन से लिख दिया, उसको फोल्ड किया, उसको अंदर डाला, पैकेज। तो उसी तरह से बना। ये पेपर जो है वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है, पेपर किसी और ने बनाया। पैकेजिंग इसको लिखा मैंने और इसका पैकेजिंग भी मैंने किया। बट अब मैं खुद तो देने नहीं जाऊंगा, मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, पोस्ट करूंगा, इधर क्या लगाऊंगा, स्टैम्प्स लगाऊंगा सर्टेन रुपीस के, और फिर मैं पोस्ट ऑफिस में दे दूंगा और वहां पर वो पहुंच जाएगा। जहां पर वो पहुंच रहा है इट इज अ टारगेट साइट। जहां पर वो पहुंच रहा है वो क्या है? टारगेट साइट। तो वैसा ही गोल्गी apparatus करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, वो बना हुआ प्रोटीन और लिपिड्स गोल्गी apparatus पैकिंग करता है, उसको मॉडिफाई करता है जरूरत पड़ेगी तो, और फिर उसको टारगेट साइट तक पहुंचाता है। वो सेल के बाहर भी है, जरूरत है तो वहां पहुंचाएगा, और सेल के अंदर। बट ऐसा मत समझो कि सेल के बाहर पहुंचाना है तो वो सेल के बाहर जाएगा, नहीं, वो सेल के अंदर रहेगा, वो सेल के अंदर रहेगा, लेकिन वो उसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा। ओके, तो पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट of the material produced by endoplasmic reticulum is done by Golgi apparatus. This is the main function of Golgi apparatus. Let's understand another functions of Golgi apparatus: modification, packaging and
इसका मेन फंक्शन। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल sugar to complex sugar, ये उसका दूसरा फंक्शन। What is the third function of this? वो शुगर बनाता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, मटेरियल का पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। ठीक है, मॉडिफाई करना मतलब क्या है कि उसको उस वे में कन्वर्ट करना कि वो इजीली पहुंच सके। मैंने एनवेलोपिंग किया, उसका तो मैंने मॉडिफाई किया, लेटर तो मैंने फोल्ड किया। अब ये छोटा सा एनवेलोप है, उसके अंदर बड़ा लेटर तो नहीं आएगा A4 साइज का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा। A4 साइज का डॉक्यूमेंट फोल्ड किया, तो मैंने क्या किया? मॉडिफाई किया। उसमें इसके पेपर के अंदर कुछ फर्क नहीं आ जाएगा, वो वापस आप सीधा कर पाओगे। तो उसी तरह से मटेरियल को पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गोल्जी apparatus. It is also it produces lysosomes. Lysosomes क्या है? That we discuss next. वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। लाइसोसोम another cell organelle present in सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट। तो ये था गोल्जी apparatus. Easy to understand and very important organelle for our body as well as cell, as well as tissue, as well as organ system, as well as organs. I hope you have understood this particular topic in a nice manner, because it is to be understood in a nice manner, and I have tried to make it easy. और नहीं याद आता है तो मेरा ये एग्जाम्पल याद रखना कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ और मुझे वो पहुंचाना है, गोल्जी apparatus के फंक्शंस याद आ जाएंगे। ठीक है? Okay, so let's move ahead with another organelle, and that organelle which we are going to understand is the organelle which we are going to understand is lysosomes. Again, it is membrane bound, vesicle. It is membrane bound vesicle. Lysosome is membrane bound vesicles and साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। membrane bound vesicles with enzymes. ये दो वर्ड्स याद रखने जरूरी है, membrane bound vesicles and enzymes. membrane bound vesicles मतलब आप देखोगे डायग्राम में आपको दिखेगा कि कुछ इस तरह के राउंड सर्कुलर शेप की ऑर्गेनल आपको दिखने को मिलेगी इस तरह। वो क्या है? लाइसोसोम। और उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वो क्या है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? तो एंजाइम है ना, एक टाइप के केमिकल है जो एक टाइप की प्रोटीन है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइम्स का काम क्या होता है? तो एंजाइम्स का जनरली काम होता है ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? जो कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ी चीज है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल। कोई बड़ी चीज है उसको तोड़ देना, कोई बड़ी चीज है उसका ब्रेकडाउन कर देना। लाइसोसोम का क्या रोल है वो समझते हैं। ओके, ब्रेकडाउन आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज ब्रेकडाउन? Lysosomes are present in many numbers. एक से ज्यादा होते हैं वो। They break down
they break down materials like bacteria. They break down material like bacteria, foreign particles, worn out cells by enzymes. वो कुछ ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है, वर्न आउट सेल्स है, उनका एंजाइम्स के वे में वो क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो वो उनका ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि वो जो सेल होते हैं, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूंगा, ब्रेक डाउन ऑफ हार्मफुल substances. ब्रेकडाउन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल है, जो हानिकारक है सेल के लिए, उनका ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है। With the help of enzymes, of course they have enzymes, मतलब लाइसोसोम ऐसी ऑर्गेनल है जिनके पास एक सर्टेन टूल है अटैक करने का। किसके ऊपर अटैक करने का? जो हमारे सेल के अंदर हार्मफुल मटेरियल घुसेगा तो उसको वो अटैक करेगा। वो थोड़ा भी नहीं सोचेगा मतलब कि जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, वो इट विल एक्ट सडनली एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस, इट विल डिफेंड द सेल। ओके, तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेल को बचाने का, प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। ओके, तो प्रोटेक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग सेल का, ये काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर सिनेरियो, व्हाट लाइसोसोम्स आर कैपेबल ऑफ। उनका दूसरा फंक्शन समझते हैं, क्या होता है। Let's understand the another role of the lysosome. समझ लो एक सेल है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सेल है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो सेल को अभी कोई रिपेयर नहीं कर सकता। पूरी ऑर्गेनल, सारी सेल ऑर्गेनल्स है वो अभी काम अच्छे से नहीं कर रही। वो सेल है ना, हमारे सिस्टम के लिए अभी क्या है कि उसका काम नहीं है, हमारे बॉडी को उसका काम नहीं है। लाइसोसोम क्या करेगा? कंसीडर दिस एज सेल। दूसरी सारी ऑर्गेनल्स को हम लोग अभी यहाँ पर डिपिक्ट नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, सिर्फ लाइसोसोम को दिखाएंगे। ये लाइसोसोम है, मैं उसको जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूँ कि हम लोग समझ सके। लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स। सेल, ये कैसा सेल है? तो ये worn out सेल है, इसका मेटाबॉलिज्म जो है उसका लोअर हो चुका है, मतलब उसका फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है। सीधी बात है, हम लोग जो चीज फंक्शन नहीं करता था उसको हम तोड़ते तो नहीं, लेकिन उसका यूज बंद कर देते हैं। बट यहाँ पर तो क्या, हमारी बॉडी उसको जब तक सेल रहेगा तब उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स इसको देने पड़ेंगे, बट इसका काम ही नहीं है, ठीक से काम नहीं करेगा। लाइसोसोम्स दे विल बर्स्ट आउट, वो खुद टूट जाएंगे इस तरह से। अब जैसे ही वो टूट जाएंगे, ये सारे एंजाइम्स पूरी सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, सारे एंजाइम्स स्प्रेड हो जाएंगे एंड these enzymes will break down whole cell। पूरे सेल का वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, सेल को ही खत्म कर देंगे।
लाइसोसोम परफॉर्म्स दिस फंक्शन। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एक सुसाइड बॉम्ब जैसा है, ठीक है, इसीलिए ही लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। लाइसोसोम का एक फंक्शन है क्या, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है, व्हेन सेल इज नॉट परफॉर्मिंग well, lysosomes will burst out and enzymes will break down whole cell। जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स में है वो पूरे सेल्स का क्या करते थे, ब्रेक डाउन करते थे, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, तो ये एक पॉइंट, एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। गिव रीजन भी पूछते हैं कि लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो रीजन आपको ये है। ओके, सो दिस वाज द मेन रोल ऑफ लाइसोसोम्स और की फीचर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का कुछ प्रोडक्शन करने का काम, मतलब कि प्रोटीन है, लिपिड्स है, ऐसा वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। इवन जो एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनल्स के बीच। आरईआरएनए क्या प्रोड्यूस किए, एंजाइम्स जो प्रोटीन है एक टाइप के। ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे गोल्जी बॉडीज, मतलब गोल्जी apparatus। गोल्जी बॉडीज क्या करेगी, लाइसोसोम भी प्रोड्यूस करेगी और ये एंजाइम्स का पैकेजिंग लाइसोसोम के अंदर कर देगी। तो हमने क्या किया, लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडीज बनाती है और यही एंजाइम का गोल्जी बॉडीज ने क्या कर दिया, पैकेजिंग कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। सो वंडरफुल कोऑर्डिनेशन इज देयर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक चीज जो है सेल ऑर्गेनल में जुड़ी हुई है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज प्रोड्यूस करती है, बट आरईआर में जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, गोल्जी बॉडी क्या करती है, वो एंजाइम और लाइसोसोम दोनों को मिक्स करके लाइसोसोम बना देती है। और ये लाइसोसोम फिर यही एंजाइम्स को सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गए, कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई पार्ट आ गया, उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में या तो पूरे सेल को खत्म करने में यूज करते हैं। सो इन दिस वे कोऑर्डिनेशन इज डन बाय endoplasmic reticulum, which is rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosome. This coordination was the key feature seen in cell. Let's understand another cell organelle which is called mitochondria. It is also called as powerhouse of the cell. As lysosome is called suicide bag of the cell, mitochondria is called powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? What is the role it performs? ऐसा तो क्या है? तो first of all we must understand the structure. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसी ऑर्गेनल है जो जिसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं। दो मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन,
ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह, जिससे कोई चीज जरूरत है वो बाहर जा सके। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन, वो हाईली ग्रूव होता है, उसमें बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, या फिर हम लोग ग्रूव तो नहीं बोल सकते, मतलब कि वो वर्ड हमारे बुक में नहीं, ग्रूव कह सकते हैं, लेकिन डीपली फोल्डेड भी कह सकते हैं। बहुत सारे फोल्ड है, देखो आप इस तरह से फोल्ड है, इस तरह के बहुत सारे फोल्ड होते हैं ये, और ये एक स्ट्रक्चर इस तरह, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ओके। नाउ इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि इसको हम पॉइंट वाइज इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि डायग्राम वाइज इसको समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है व्हिच इज कॉल्ड एटीपी, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म। हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, each and every living organism on this earth requires energy, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी का यूज करते हैं। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एटीपी, ओके। तो एटीपी जो है वो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोड्यूस करता है। दिस माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse, because power किसको बोलेंगे? जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ATP is produced by mitochondria and that is why it is called powerhouse of the cell. This is the most important feature of mitochondria। और ये ATP कहाँ प्रोड्यूस होता है? इनर मेम्ब्रेन। ATP production is occurring in inner membrane, इसीलिए ये डीपली फोल्डेड है कि ज्यादा अमाउंट में ATP प्रोड्यूस हो सके। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट, क्योंकि ज्यादा ATP चाहिए, और ATP जो प्रोड्यूस हुए ना वो एक छोटे छोटे पोर्स है ना, वहां से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एटीपी को बाहर भेजता है और इनर मेम्ब्रेन एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो डबल मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन सिस्टम इज देयर, और उसका एक लॉजिक है कि अंदर का मेम्ब्रेन एटीपी प्रोड्यूस करेगा, बाहर का मेम्ब्रेन जो होगा वो पोरस है वो एटीपी को बाहर भेजेगा। क्यों बाहर भेजेगा? सबको एटीपी की जरूरत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूरत है क्योंकि उसको प्रोटीन और लिपिड प्रोड्यूस करना है, इसलिए वो एनर्जी ले रहा है। फिर गोल्जी अपैरेटस को भी चाहिए क्योंकि यार उसको तो लाइसोसोम भी बनाना है, पैकेजिंग भी करना है, मॉडिफिकेशन भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सबको एनर्जी देता है, ठीक है, वो सबको एनर्जी देता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट सप्लाइज द एटीपी एंड आल्सो प्रोड्यूस द एटीपी। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ mitochondria. Now another structural features I would like to add about mitochondria is it has its own DNA and ribosomes। उसके खुद के DNA है उसका और राइबोसोम्स भी, उसका खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट खुद के, मतलब कि सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, और इसके पास भी डीएनए है। क्यों डीएनए है? क्योंकि इसको है ना डीएनए जो होता है उसको हेल्प करता है एटीपी प्रोड्यूस करने, ठीक है। तो इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स
So it produces its own protein. प्रोटीन है ना, हर जगह चाहिए, प्रोटीन हर जगह चाहिए, प्रोटीन की जरूरत हर एक को है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबको चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन की राह नहीं देखेगा ये कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट एवरी सेकंड है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट एवरी सेकंड है। आप ऐसा समझ रहे कि जब आप सोते हो तो एनर्जी नहीं यूटिलाइज होती, ऐसा नहीं होगा। तभी भी आपके सेल्स फाइट कर रहे होते हैं, आपने जो खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कहाँ से लाएंगे एंजाइम्स, कौन देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो उस तरह से इसीलिए उसके पास अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स भी है उसके पास, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। So this was the understanding of mitochondria, powerhouse of the cell. Reason is asked that mitochondria is called powerhouse of the cell. Why? We can answer it like this. Mitochondria is called powerhouse of the cell because it is the organelle which produce ATP, and ATP is the energy currency of the cell. Now what is energy currency? Energy currency means energy house. ATP is the energy currencies, and with the help of ATP each and every living organism can get energy. It is the energy molecule, and the full form of ATP is adenosine triphosphate. That is why mitochondria is called powerhouse of the cell. So this was the features related to mitochondria. And mitochondria, lysosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, all of the organelles. These were the very important concepts we have studied, which are also going to be there in exams. So please understand these concepts very precisely, and also you have to understand the structure. Then only you will be able to understand the function of different cell organelles. So we have understood this much about these organelles. In the next class I will finish the whole chapter. The next class will be the last class of 5th chapter. So this is our second last class of 5th chapter. Please watch all the videos. I will upload another video about the vacuoles, plastids, and also cell division. Okay, after that I will provide homework on next video. I will give you homework. So please watch the video. If you have not watched all the videos, please watch them, and I will see you in next class. Goodbye.